Hello class 8. Today I am going to tell you about glands. In previous video I had told you about the endocrine gland, exocrine glands, and now I will teach you about gland, how many glands are present in our body and what is the function of the glands. Okay, so here in our body total 7 important glands are present. The number one gland is pineal gland. Okay, so pineal gland is situated in the brain, or it is found within the brain. Okay, and it helps in the sexual development. So pineal gland is present in the brain and is helping in the development of the sexual character. So when we become sexually matures, this pineal gland which is situated in the brain releases the hormone and we become sexually mature. Okay, now second is pituitary gland. I had told you pituitary gland is a master gland. It is situated at the base of the brain, that is hypothalamus. Okay, so it is situated on the hypothalamus and it helps in the growth of the body. If the structure of body become very high, that condition is known as a giantism, or when the growth is stopped, then that condition is known as a dwarfism, yani ki baunapan, dwarf. Okay, now third is thyroid gland. Thyroid gland is present in the neck region, I had told you. Okay, now and this thyroid gland releases the thyroxine, and this thyroxine hormone prevent us from goiter, cretinism and mixed edema. So goiter, I had told you, enlargement of the thyroid gland. Cretinism is mentally retardation and mixed edema is become sluggish. Okay, so uh, parathyroid hormone is when 4 small glands embedded in the thyroid gland. तो 4 small glands thyroid gland के अंदर ही पाए जाते हैं. These 4 small glands are considered as a parathyroid gland, and parathyroid gland regulates calcium as phosphorus balance in the बॉडी. तो कैल्शियम एस फॉस्फोरस के बैलेंस को ये मेंटेन या कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन. तो जो हमारी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बोन के जस्ट पीछे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट थाइमस ग्लैंड डू? थाइमस ग्लैंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम, जिससे कि हम क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड. एंड एड्रीनल ग्लैंड आई हैड टोल्ड यू लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी. तो हमारे अंदर 2 किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर जो ग्लैंड सिचुएटेड होता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज अ एड्रीनल ग्लैंड. ओके, एंड एड्रीनल ग्लैंड इज known as a stress hormone and it removes the stress level in the body. Now last one, that is a pancreas. What pancreas does? Pancreas situated below the stomach. I had told you with the help of diagram also. So see my last video. Now pancreas situated below the stomach, and what it does, it secretes the insulin hormone and it also secretes the glucagon. So when it secretes the insulin hormone, blood sugar level goes down. This is a symbol of down. And when glucagon increases, the blood sugar level goes up. ये देखिए, ये वाला सिंबल है गोज अप, यानी कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और यहाँ इंसुलिन के रिलीज होने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है. तो कम होगा तो क्या होगा कि हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, और अगर ग्लूकागॉन ब्लड शुगर बढ़ाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन अवर बॉडी. नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट नाउ. व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन द बॉडी ड्यू टू द हार्मोन सिक्रीशन. अब अगर हार्मोन सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ज़रा देखते हैं. सो ग्रोथ हार्मोन, दैट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ ग्रोथ हार्मोन.
स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं और बोन्स की ग्रोथ करवाता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, नाउ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो एंटी का मतलब होता है अपोजिट में और यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन। तो एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है वो हार्मोन जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को रोक दे। ऐसे हार्मोन्स को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक hormone, and this hormone secreted by the pituitary gland. Pituitary gland is also a master gland, and this gland prevent formation of the large amount of the यूरिन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करेगा और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में यूरिन के फॉर्मेशन को रोक देगा। ओके, थर्ड इज थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है ज़रा देखते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट और बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट द रेस्ट। तो नंबर ऑफ कैलोरीज विच आर रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट द रेस्ट। जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी फंक्शन कर सके उसके लिए उतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं बीएमआर। तो थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायरोक्सिन ग्लैंड से, एंड इट रेगुलेट्स द बीएमआर। अब बीएमआर क्या है, नंबर ऑफ कैलोरीज विच इज रिक्वायर्ड टू कीप आवर बॉडी फंक्शनिंग एट द रेस्ट। तो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बीएमआर। नाउ नेक्स्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इज नोन एज अ ग्लैंड ऑफ द इमरजेंसी। मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एंड एड्रीनल ग्लैंड इज फाउंड एट द ईच किडनी, टॉप ऑफ द ईच किडनी। Last one, the testis. Testis is a male organ. Testis is a male organ. Ovary is the female organ. So testis and ovaries secretes the sex hormone. Okay. Now, which is responsible for male and female secondary sexual characters? तो मेल और फीमेल्स में टेस्टिस और ओवरीज सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिससे मेल और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ होती है, एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन बॉडी इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज का मतलब व्हेन वी बिकम सेक्सुअली मैच्योर, दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। तो बॉयज़ के लिए ये एज होती है 12 to 16 ईयर, और जो फीमेल हैं फीमेल में ये एज होती है प्यूबर्टी की 10 to 14 ईयर्स। तो 10 to 14 ईयर्स फीमेल में और फीमेल में और मेल्स में या बॉयज़ में 12 to 16 ईयर्स, दैट एज इज़ नोन एज अ प्यूबर्टी एज। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द endocrine system, and I believe you understood this topic. In next video I will tell you more. Till then, prepare it. Thank you.